Hello, friends, and welcome back to the channel. This is the third episode from the series of going from Manali to Jibhi and Jalori Pass and then returning back. नमस्कार दोस्तों, ये इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है जिसमें हम मनाली से जिभी होते हुए जलोरी पास गए हैं और फिर वापस. In today's video, we start from Jibhi Bridge and we go towards Jibhi Waterfall first. I've already put up a video of Jibhi Waterfall. This road bifurcates here. The right goes towards Kushani and the left towards Jibhi Waterfall. I'll give a link in the description of Jibhi Waterfall, which I've already put up earlier. इस वीडियो में हम जिभी ब्रिज से जिभी वाटरफॉल की तरफ पहले गए हैं और पीछे अभी आपने रास्ता देखा जहाँ से बाइफरकेट होके राइट में कुशैनी और लेफ़्ट पे जिभी वाटरफॉल की तरफ आता है. जिभी वाटरफॉल का वीडियो मैं पहले भी बना के मैंने अपने चैनल पे डाला था. उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा. आप उसको देख सकते हैं कैसा ये वाटरफॉल है और कैसा अंदर का वहाँ का रास्ता है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग बैक फ्रॉम जिभी वाटरफॉल एंड वी प्रोसीड via Jibhi towards Shoja and then up to Jalori Pass. Then the road goes on further towards Ani and Narkanda and Shimla, or you could go towards even Kinnor and Rekongpyo, Kaza, that side from that road. अब हम वापस जिभी की ओर मुड़ गए हैं और यहाँ से आगे जब हम जलोरी पास तक जाएंगे तो जलोरी पास के बाद आगे रास्ता अन्नी होते हुए शिमला की तरफ नारकंडा की तरफ जाता है और एक रास्ता वहाँ से मुड़ के रेकोंगप्यो काज़ा की तरफ भी चला जाता है किन्नौर होते हुए. So as you can see from the timestamp, this video was recorded in April 2021, which is this year. And yeah, the road on the left goes down back towards Ort, Bali Chowki, Banjar, and we'll take a right from here. So as you can see from the timestamp, this was done in April, and the total occupancy in the car at this time was 3 adults and my 3-year-old son. And AC was off as GB is quite a cold area compared to Ort or Kullu or Mandi. So AC was off and it's quite a steep journey up. So I was going up with AC off only. जैसा आप नीचे टाइम स्टैम्प में देख सकते हैं, ये जो रास्ता है हमने अप्रैल में कवर किया था और उस समय वहाँ पे काफ़ी ठंड थी इसलिए गाड़ी में एसी ऑफ था. हम लोग 3 बड़े और एक मेरा 3 साल का बेटा उस समय गाड़ी में थे. जिभी कुल्लू औट या मंडी के मुकाबले थोड़ा ठंडी जगह है, थोड़ी ऊंचाई पर है, इसलिए एसी की यहाँ पे उस समय ज़रूरत भी नहीं थी. As we approach Jalori Pass towards the end of the video, you'll see that there was still snow around at that time. So you can imagine it wasn't hot at all. It was pretty cold when we went there. वीडियो के अंत की तरफ जब हम जलोरी पास पहुंचने वाले होंगे उस समय आप देखेंगे कि आसपास बर्फ़ भी पड़ी हुई थी. तो इतनी गर्मी इन जगहों में उस समय नहीं थी और हम इसलिए एसी भी नहीं हमने चलाया था. There is a very beautiful Sirolsar lake which is a trek from Jalori Pass. There's about a kilometer of road till where the cars go and then from there you have to trek towards Sirolsar lake and you can go camp there or you can just visit the lake and come back. It's a really nice place. We didn't go all the way to the lake, but that area is really beautiful.
जलोरी पास से अगर आप आगे जाएं तो सिरोलसर लेक है और वहाँ के लिए आप जलोरी पास से ट्रैक कर सकते हैं। पास से एक थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, लगभग आधा 1 किलोमीटर का, जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ पे आप गाड़ी छोड़ करके और फिर आगे पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं। और हम पूरे रास्ते तो नहीं गए, लेकिन जहाँ तक गए थे वहाँ तक काफ़ी सुंदर दृश्य था आसपास का। So I would definitely recommend everyone who's coming towards Tirthan Valley or towards Jibhi, or even towards going all the way towards Jalori Pass, to definitely go and see the Sirolsar Lake. And also there is a fort, Raghunath Fort if I'm not wrong, nearby Jalori Pass, which you should definitely visit. तो मेरी आप में से हर एक से जो जलोरी पास या जीभी या तीर्थन वैली में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, आप ज़रूर कोशिश करें कि आप सिरोलसर लेक जा सकें। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक रघुनाथ फोर्ट करके एक किला भी जलोरी पास के नज़दीक में है, जहाँ आप ट्रैक करके थोड़ा जा सकते हैं और घूम सकते हैं। तो ज़रूर इन जगहों पे जाके आप टूरिज़्म को बढ़ावा दें। As has been my practice, I forgot to put the map screenshot in the beginning of the video, so I've added it in the end. So this distance from GB waterfall to Jalori Pass is 12 kilometers, and ideally it should take you around 30 to 35 minutes to climb up. It's a steep climb, and especially when you're coming down you really have to take care of your brakes. The brakes get hot and many people have experienced brake failures in these roads. So be really careful and drive down on with gear braking instead of using your brakes all the time. Drive in lower gears so that you can come down without damaging your brake shoes और हीटिंग देम अप। जैसा मैं पिछले वीडियोस में करता आया हूँ, इस बार मैं गूगल मैप का स्क्रीनशॉट शुरू में डालना भूल गया, उसको मैंने अंत में जोड़ा है। और जीभी वाटरफॉल से और जलोरी पास का डिस्टेंस जो है वो लगभग 12 किलोमीटर का है, जिसको कवर करने में आपको आधे घंटे से थोड़ा ऊपर लग सकता है, डिपेंडिंग कि ट्रैफिक कितना है। और जैसा आप देख सकते हैं चढ़ाई है, देखने में अभी उतनी नहीं लग रही है, लेकिन बीच बीच में ये काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। और जब आप लोग उतर रहे होते हैं तब गाड़ी के ब्रेक गर्म होके कई गाड़ियों के ब्रेक फेल्स भी इन रास्तों पे होते हैं। इसलिए मेरी सलाह ये होगी कि बार बार ब्रेक से गाड़ी स्लो करने के बजाय आप कम गियर में गाड़ी को नीचे उतारें, इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें, ताकि आप सेफली नीचे आ सकें बिना ब्रेक फेलियर के। क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं साइड में ढलान बहुत गहरी है और नीचे खाई में गाड़ी जा सकती है अगर आप सावधानी से ना उतरें। सो एज यू कैन सी टुवर्ड्स आवर राइट इज़ अ डीप गॉर्ज। सो if you don't take care of your brakes, if you come down too fast and then brake often, your brake shoes will get hot, and if your brake fails, your vehicle may end up driving down that gorge, and it will not be a pretty sight. So do take care when you're driving in these roads. इस पूरे रास्ते के लगभग बीच में जीभी और जलोरी पास के बीच में शोजा करके गांव पड़ता है। वहाँ हम अभी वीडियो में पहुँचने ही वाले हैं थोड़े समय में। और वो भी रुकने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ जीभी बिल्कुल नीचे इस छोटी जो रिवर है, स्ट्रीम है, उसके साइड में बसा है। शोजा बिल्कुल इन पहाड़ों के ऊपर की तरफ है और वहाँ से आसपास के चारों तरफ के बहुत अच्छे व्यूज़ आप लोगों को मिलेंगे, सनराइज़, सनसेट
और वैसे भी आप अगर पैनोरामिक व्यूज़ वगैरह लेंगे, ड्रोन शॉट्स लेंगे, तो आपको सोजा से बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। काफ़ी होम स्टेज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे, गेस्ट हाउसेस मिलेंगे। तो आप अगर जीभी साइड आते हैं, जीभी रुक सकते हैं। जीभी में भी आपको कैंप साइट्स मिलेंगी और सोजा में आपको होम स्टेज़ और गेस्ट हाउसेस मिलेंगे। While GB is right next to this stream, the GB River, Soja, which is roughly halfway between GB and Jalori Pass, is another great place. It's we are about to reach there in the video in a few minutes. And while GB is right next to the stream, this is quite high up, and you get very nice panoramic views, nice sunset and sunrise views from Soja. So yeah, and there are a lot of campsites in GB, while there are a lot of guest houses and homestays in Soja. So you can decide to stay in either one of these places based upon your convenience, and each of these places has its own beauty. अगर आप लकी हैं तो आप इन रास्तों पे कुछ जंगली जानवरों को या पक्षियों को भी चलते फिरते देखेंगे। अभी मैंने वीडियो में मार्क नहीं किया है, लेकिन थोड़ा आगे जाके सोजा से पहले एक जंगली मुर्गी, जिसको बोलते हैं एक्चुअली एक टाइप की वो जंगली चिड़िया होती है, जंगली मुर्गी होती है, वो हमने रास्ते में हमें क्रॉस करती देखी थी। तो अगर आप भी लकी हैं तो आप कोई जंगली जानवर या ऐसे अलग अलग चिड़ियाँ जो होती हैं उनको आप देख सकते हैं। फीजेंट्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, वो हमारे रास्ते से गुज़रे थे। जब वो वीडियो में क्रॉस करेगा मैं ज़रूर एक बार कमेंट्री में आप लोगों को बताऊंगा। While driving on these routes, if the traffic isn't much, you might be lucky enough to see pheasants or wild animals crossing the road or sitting beside the road. We did see a pheasant crossing the road. I'll point it out. I think it's about to come on the video. And we did see one pheasant, I think right after this corner. Just wait and see. No, but yeah, if you are lucky, there it's crossing. Yeah, yes. अभी आपने, अगर आप इस वीडियो को अभी पीछे स्लो करके देखेंगे तो एक जंगली मुर्गी, एक चिड़िया आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, काली सी दिख रही थी, बट एक जंगली मुर्गी सड़क क्रॉस करके गई। So if you slow down the video a little back there, you will see that was a pheasant crossing the road. So we are approaching Soja now, and as I was telling you, there are a lot of guest houses and homestays in this place, and it's quite high up. It's halfway between GB and Jalori Pass. तो अब हम सोजा गांव में आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे गेस्ट हाउसेस और होम स्टेज बहुत हैं। कुछ बन भी रहे हैं, कुछ बने हुए हैं, और ये जीबी के मुकाबले काफ़ी ऊंची जगह है, तो आपको हर तरफ का, चारों तरफ का एक बहुत अच्छा व्यू यहाँ से मिलता है। और ये जलोरी पास और जीबी के बीच में ये जगह पड़ती है। From Soja onwards, the climb I think is a little more steep towards Jalori Pass, and the road is narrow. Definitely it's a single road, but you do have to give pass to the vehicles when they are coming up, or if they are coming down from opposite to your side. सोजा से जलोरी पास तक, जहाँ तक मुझे लगता है, काफ़ी चढ़ाई बढ़ जाती है और सड़क काफ़ी एकदम ऊंची हो जाती है। और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिंगल सड़क है, तो आगे से कोई गाड़ी आ रही है या नीचे से कोई गाड़ी आ रही है, आपको उनको साइड देना होता है।
अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरी गाड़ी को साइड दें. Driving on the hills gets a little tricky sometimes. You have to be really careful that your momentum is intact and you give enough space for someone who's driving up so that they don't have a problem coming up the hill. पहाड़ों पे गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि आपको चढ़ती गाड़ी को पहले आने देना होता है और आपको अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसी जगह पे रुक के साइड दे सकें कि दूसरी गाड़ी का भी मोमेंटम बीच में टूटे ना और वो एक फ्लो में ऊपर चढ़ सके. For those of you who haven't subscribed to my channel, I would request you to kindly hit that subscribe button if you love the kind of dashcam videos that I put up for different places where I go to. Do hit that like button and share this with others who might be planning to drive towards Jibhi or Jalori Pass, or this whole series for those who want to drive towards Tirthan Valley in general. So do hit that like, share and subscribe buttons and help me reach out to more people. चैनल पे जो नए हैं उनसे विनती है, अगर आपको मेरा ऐसा डैश कैम का कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक बटन दबा करके आप चैनल को आगे सपोर्ट करें और इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करें जो या तो जीभी जलोरी पास साइड आना चाहते हैं या तीर्थन वैली भी आना चाहते हैं, तो भी रास्ता उनके लिए यही है. आप ये पूरा जो प्लेलिस्ट है उसको उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें पता लगे कैसे रास्तों पे उनको चला के गाड़ी आना है. This road is closed for a few months during winters, especially because of snowfall around Jalori Pass. And by March, I think it opens up for vehicular traffic again. So avoid driving in the winters because there would be snow on the road. I think April onwards is a good time to travel on these roads. सर्दियों में कुछ महीनों के लिए ये सड़क ज़रूर बंद रहती है क्योंकि जलोरी पास काफ़ी ऊंचाई पर है, और मेरे हिसाब से अप्रैल से एक सही समय है जब आप इस सड़क पे ड्राइव करके आ जा सकते हैं, क्योंकि सड़क से बर्फ़ ख़त्म हो चुकी होती है और आपकी गाड़ी का फिसलने का डर उतना नहीं होता ऐसी चढ़ाई में. ड्राइविंग अप और डाउन इन योर रेगुलर front wheel drive or rear wheel drive vehicles becomes a task in such roads, especially if there's snow or black ice on the road. So definitely do not recommend you to drive here during winter months, but it's entirely up to you how adventurous you are. इन सड़कों पे सर्दियों में मैं तो चलाने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, चाहे आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव हो, रियर व्हील ड्राइव हो या 4x4 भी हो. बट ये आपके ऊपर और आप कितने एडवेंचरस हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप सर्दियों में इन रास्तों पे आना चाहेंगे या नहीं. मेरे हिसाब से तो ख़तरनाक है और मैं इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा. I would love to hear your feedback in the comments about my videos and what all suggestions do you have to improve them. I mostly shoot them through my dash cam and upload them. It might change in the coming days. I might be recording more on the mobile rather than on the dash cam. But I don't have any drone to give you drone shots of the places I visit. But apart from that, what can I change so that
I can reach out to more people. Do let me know down in the comments below. आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर मेरे को अपनी विचार दें कि कैसे मैं अपने चैनल के कंटेंट को और सुधार सकता हूं और बेहतर बना सकता हूं। मैं ज़्यादातर ये जो वीडियोस हैं अपने गाड़ी के डैश कैम से रिकॉर्ड करता था और अब आने वाले समय में शायद अपने फ़ोन को माउंट करके मैं रिकॉर्डिंग्स करूं, बट क्योंकि मेरे पास ड्रोन नहीं है तो और क्या तरीका है, मैं कैसे अपने चैनल का कंटेंट इम्प्रूव करके ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं, आप लोग मेरे को ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उनको अमल में ला सकूं और आप लोगों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचा सकूं। So we are up in the snow line now, as you can see from the past few minutes. We've been driving with snow on the roadside and we are just about approaching the pass, and it's a really beautiful place. As I said earlier, I do recommend it to everyone who's coming towards Tirthan or GB valleys to drive up here and enjoy the scenic beauty, enjoy the Serolsar Lake and the Raghunath Fort as well. अब इस वीडियो के अंत में हम आ गए हैं, हम जलोरी पास पहुंचने वाले हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप तीर्थन या जीभी वैली आ रहे हैं तो ज़रूर से कोशिश करें कि आप यहाँ जलोरी पास तक आ सकें, सरोलसर लेक तक जा सकें और आगे रघुनाथ फोर्ट तक भी जा सकें। वीडियो के अंत तक साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I thank every one of you for being till the end of the video. सबको जय मसीह की। Praise the Lord everyone and hope to see you with the next video pretty soon. बहुत जल्द आपको एक और नए वीडियो के साथ इस सीरीज़ में और अदरवाइज़ भी मैं मिलूँगा। सो जल्द मिलने की कामना करते हुए धन्यवाद। रघुपुरा फोर्ट एंड नॉट रघुनाथ फोर्ट।